Hello dear TYBSc microbiology students, welcome to the another video lecture of immunology second. Now in the last lecture we have completed the biochemistry of the blood grouping, as well as we have seen the inheritance of the blood grouping, that how the genes play important role in the blood grouping. And now here we will see one more type of the blood grouping system, that is the RH type of the blood grouping. Okay, so generally this blood grouping system is been based on the presence and the absence of the D antigen. If you have done the agglutination test in your labs and blood group detection test, I would rather say, so you will must be knowing that the D antiserum is added, and that's how you predict the positive or the negative factor of your blood group. So that's only the thing which we will see in the little bit of depth, and how it is been used for the classification of the blood groups. Okay, so generally along with the A B antigens, one more type of the antigen is present on the RBC, or it may not present on the RBC. On that basis the blood groups may be the RH positive or the RH negative. We all know this basic. Okay, this factor, that is the RH factor, is based on the presence or the absence of what? D antigen which is encoded by the D gene. Okay, now this gene is present, or the RH gene is present on the chromosome number 1 in the humans. Okay, so now this gene was been discovered in the RBCs, that's why it is known as the RBCs of the rhesus monkey, that's why it is known as the RH factor. Okay, so let's it is a very complex kind of a system. Along with this, it not only it is based on the presence of the for only the RH factor. Okay, it is based on the presence of around 45 genes, but the important one is the RH. Okay, so now let's see the history behind this RH factor, that what was the discovery, how was this discovered. तो इसके behind एक ऐसी story है कि एक lady थी, ब्लड ग्रुप तो डिस्कवर हो चुके थे तब तक, लैंस टेनर जी ने और उनके कलीग्स ने डिस्कवर कर लिए थे ब्लड ग्रुप्स, कि ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन अभी तक प्लस माइनस थिंग वाज नॉट देयर. ठीक है, तो एक डिस्कवरी की गई, एक लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी, तो उसमें एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप सेम था. ठीक है, सपोज ए होगा, तो तब भी उसमें कुछ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दिखा कि उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया उसका ब्लड ग्रुप. तो साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि इसके बिहाइंड रीज़न क्या होगा. और एक चीज़ उन्होंने देखी कि उनका जो बेबी हुआ, दैट वाज आल्सो hemolytic. One of the ladies baby was also the suffering from, newborn baby was suffering from some kind of a hemolytic disease. Okay, उसके बॉडी में hemolysis हुआ, and that thing like grabbed the attention of this scientist. Okay, Lance Turner and his colleagues. तो they wanted to know कि ये ब्लड ग्रुपिंग या फिर ये कौन सा नया टाइप का एंटीजन है जो ऐसे रिएक्शंस दिखा रहा है. तो इसलिए इन्होंने थोड़ा डिटेल में गए, उन्होंने वो एंटीजन लिया, और ये एंटीजन जब इन्होंने इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज देके देखी, दैट वाज फ्रॉम द गुनिया पिग, तो उनको वो रिएक्शन दिखा अग्लूटिनेशन का. ठीक है, तब उनको समझ आया कि ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी समहाउ कॉन्ट्राडिक्टरी है, या एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रही है. अब ये एंटीबॉडीज जो थी, जो गुनिया पिग से आइसोलेट की थी, वो एंटीबॉडीज वेयर अगेंस्ट दी मंकी आरबीसीज, जो रीसस मंकी है उसके आरबीसीज के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज किसने प्रोड्यूस की थी? गुनिया पिग ने, सॉरी नॉट गुनिया पिग, रैबिट ने प्रोड्यूस की थी. एंड ये जो एंटीबॉडीज थी, ये जैसे अग्लूटिनेट कर रही थी रिसस मंकी के एंटीजन्स को, सेम वो इस औरत के एंटीजन को भी अग्लूटिनेट कर रही थी. सो ऐसे उनको थोड़ा सा सस्पेक्ट हुआ, एज वेल एज फिर यही एंटीजन्स, फिर इसके ही बेसिस पे उन्होंने इसको RH फैक्टर नाम दे दिया रिसस मंकी के एंटीजन्स के लिए. ये लोग ऐसी ये चीज़ दिखा रहे, रिएक्शन दिखा रहे. तो वो जो रैबिट में जो ये थी एंटीबॉडीज़ थी, उनको RH एंटीबॉडीज़ कहा गया, या फिर एंटी RH एंटीबॉडीज़ कहा गया. तो ये जो एंटीबॉडीज़ थी एंटी RH, जो किस में थी? रैबिट में थी. रैबिट में जब एंटीबॉडीज़ कब वो प्रोड्यूस हुई, जब इनमें साइंटिस्ट ने क्या किया, गुनिया पिग में, सॉरी रैबिट में क्या किया, जो रीसस मंकी थी उसके एंटीजन्स, आई विल शो यू डायग्रामेटिकली. तो मंकी के जो एंटीजन्स है, दैट इज आरबीसी. ठीक है, वो आरबीसी लिए, और वो आरबीसी किस में डाले?
जो रैबिट था उसमें डाले, और रैबिट ने जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की इस अगेंस्ट एंटीजन के लिए, ठीक है, यही एंटीबॉडीज़ उन्होंने वो वुमन के एंटीजन के लिए देखी टेस्ट करके, तो उनको अग्लूटिनेशन रिएक्शन मिला, क्योंकि ये जो डी एंटीजन के लिए रिएक्शन था वो बस यही जो है एंटीबॉडीज़ दिखा रही थी, जो किस में थी, रैबिट में थी, और वो किसके अगेंस्ट थी, मंकी के अगेंस्ट, ठीक है। तो यही रिएक्शन की वजह से उनको वो जो एंटीजन है उसको नाम क्या दिया था फिर, RH फैक्टर, और फिर वो जो एंटीबॉडीज़ थी वो थी एंटी RH एंटीबॉडीज़, ठीक है। बट बाद में ये भी ऑब्जर्व हुआ कि इन्होंने जो है ना कि सिर्फ उस रैबिट के में ऐसा रिएक्शन दिखा, बल्कि गुनिया पिग के RBC के लिए भी सेम टाइप का रिएक्शन इन व्हाट वी से एंटीबॉडीज़ ने जो रैबिट में से ली थी, जो किसके लिए थी, फॉर द रिसस मंकी, वही एंटीबॉडी सेम प्रोड्यूस हुई जब सेम रिएक्शन गुनिया पिग के लिए की गई, जैसे रिसस के लिए की गई थी, वैसे ही जब गुनिया पिग के लिए की तो गुनिया पिग में भी सेम रिएक्शन ऑब्जर्व हुई। मतलब जब गुनिया पिग का RBC में जब इन्होंने ये रैबिट की एंटीबॉडीज़ डाल के दी तब भी उनको सेम रिएक्शन मिला, बट तब तक नाम दे चुके थे ये RH फैक्टर, तो वही नाम उन्होंने कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। तो ये जो RH फैक्टर ये भी डिस्कवर किसने किया था, लेविन, स्टेटसन एंड दी लैंडस्टेनर, ठीक है। लैंडस्टेनर जी ने तो एंटीबॉडीज़ डिस्कवर की थी, तो दैट्स वाई इट वॉज नेम एज दी RH फैक्टर, क्योंकि ये पहले जो था RH फैक्टर बस रिसस मंकी के लिए था, लेकिन बाद में ह्यूमंस में भी नोटिस हुआ। तो फिर ये जो एंटीबॉडीज़ थी इन्होंने फिर सब ह्यूमंस में टेस्ट करके देखा कि मतलब कितना जो है कितनी ह्यूमंस में ये फैक्टर है प्रेजेंट। तो इनको टेस्ट करना था कि ये जो फैक्टर जो रिसस मंकी में यूजुअली प्रेजेंट होता है वो कितने ह्यूमंस में प्रेजेंट है। ये सब टेस्ट करने के लिए उन्होंने वही एंटीबॉडीज़ जो किसमें से आइसोलेट की थी, फ्रॉम द रैबिट, वही एंटीबॉडीज़ इन्होंने बाकी ह्यूमंस के लिए भी देखा। तो इनको पता चला अबाउट 85% ने अग्लूटिनेट किया और 15% ने नहीं किया। मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो 85% ह्यूमंस में ये फैक्टर प्रेजेंट था, RH फैक्टर, और 15% पेशेंट ह्यूमंस में ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं था। बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट टेस्ट करके इन्होंने पता कराया, ठीक है। तो RH एंटीजन जो होता है या डी एंटीजन जो होता है वो ऑलमोस्ट 85% लोगों में होता है एंड 15% में नहीं होता, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो होता है RH फैक्टर प्रेजेंट रहता है। आपने भी नोटिस किया होगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत लोगों का रहता है, निगेटिव नहीं रहता। ऊपर से ये जो एंटीजन है RH फैक्टर, ये भी ब्लड ग्रुपिंग के जो ट्रांसफ्यूजन में है, ठीक है। ब्लड ग्रुप का जो ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? तो सपोज निगेटिव पॉजिटिव का अगर सपोज कोई कोई पर्सन निगेटिव है और उसने पॉजिटिव को ब्लड दे दिया तब भी एक्सेप्ट नहीं होगा वो ब्लड, या फिर पॉजिटिव ने निगेटिव के लिए दिया तब भी वो ब्लड एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी फैक्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट एंटीजन है जितना ABH एंटीजन से, ठीक है, उतना ही इम्पॉर्टेंट RH फैक्टर भी है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। तो आप जब ब्लड ग्रुपिंग के आपने टेस्ट की थी तब आपने तीनों का चेकिंग किया था, A के लिए भी किया था, B के लिए भी किया था एंड D के लिए भी किया होगा लैब में, आपको पता होगा। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि वो भी इतना ही रोल प्ले करता है। तो क्या होता है, अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक मदर है, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव होगा और फादर का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? तो सपोज मदर का ब्लड ग्रुप इज़ निगेटिव एंड फर्स्ट चाइल्ड है उनका, ठीक है, तो फादर का ब्लड ग्रुप इज़ पॉजिटिव एंड उस बच्चे ने या फिर ऑफस्प्रिंग में फादर का ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो क्या होता है जनरली, तो जो मदर का ब्लड ग्रुप है जो सपोज निगेटिव है तो उसके लिए वो जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा इट विल बी द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड इट विल बी लाइक अ एंटीजन फॉर इट। तो इसकी वजह से क्या होगा, मदर में जो है जनरली जब ऐसा होता है, चाइल्ड जब प्रेजेंट होता है इन द प्लासेंटा, तब प्लासेंटा के थ्रू जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र होता है, मदर ऑफस्प्रिंग का मदर में ट्रांसफ़र होता है। तब क्या होता है, मदर में वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है एंड जनरली वो IgM टाइप की होती है, और IgM जो होते हैं वो लार्ज एंटीबॉडीज़ होती है, इसलिए वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते। तो फर्स्ट चाइल्ड तो सेफ हो जाता है। सेकंड चाइल्ड में भी अगर वही ब्लड ग्रुप आया, मतलब फादर का पॉजिटिव आ गया निगेटिव मदर में, तब क्या होता है, मेमोरी सेल जो होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और उस चाइल्ड में क्या डिसीज़ होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया।
तो इसकी वजह से वो बर्थ नहीं हो पाते या फिर वो चाइल्ड जो है वो डिलीवरी के टाइम पे किल हो जाता है, बिकॉज उसमें हेमोलाइसिस होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब ब्लड ग्रुप मैच नहीं खाता कभी कभी। तो अगर पर्टिकुलरली होता तब है जब मदर इज़ निगेटिव एंड फादर इज़ पॉजिटिव, एंड फादर का ब्लड ग्रुप अगर इनहेरिटेड हो जाए तो इट लीड्स टू द प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस। तो इसलिए RH का भी उतना ही सिग्निफिकेंस है जितना AB ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का है। तो दैट्स वाई इसके लिए हम जो है AB के साथ साथ RH का भी टेस्टिंग करते हैं। पहले बस AB का किया जाता था जब तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई, बाद में इसकी डिस्कवरी हुई, लैंस स्टेनर जी ने डिस्कवरी की, एंड दैट्स हाउ इट वाज इंट्रोड्यूस। और आज हम तीनों का टेस्टिंग करते हैं तभी हम जो है अप्रूवल देते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इन द प्रेगनेंसी, मिसकैरेजेस, अबॉर्शन। तो दैट्स वाई RH कंपैटिबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो RH और हाँ, RH प्रेजेंट है मतलब दैट पर्सन इज रिगार्डेड एज RH पॉजिटिव। सपोज A ब्लड ग्रुप का पर्सन है तो A पॉजिटिव एंड A निगेटिव, B का है तो B पॉजिटिव B निगेटिव, दैट्स वेरी बेसिक। तो ये होता है RH फैक्टर। RH फैक्टर D एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस की मदद से होता है। डिस्कवरी इसकी रेसस मंकी में की गई थी, दैट्स वाई इट इज नोन एज RH फैक्टर, ठीक है। सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग regarding the RH blood grouping system. I hope you have understood. If you have any query related to any point of the syllabus, please feel free to contact me. Thank you.